Hello guys, hope you all will be fine. Today we are going to discuss something regarding the demand analysis. We have taken up the MCQ series regarding the demand analysis. So our first question is law of demand fails in case of फर्स्ट ऑप्शन है गिवन गुड्स, सेकंड ऑप्शन है इंफीरियर गुड्स, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास आर्टिकल्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन और फोर्थ ऑप्शन है हमारा बोथ ए एंड सी। देखिए जो ये लॉ ऑफ डिमांड है इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी। व्हाट इट सेज देयर इज ए negative relationship between quantity demanded of a commodity and its price. So this is the main statement behind law of demand. When price of a commodity is high, the quantity demanded of a commodity falls. So there is an inverse relationship or negative relationship between the price and quantity demand of a commodity. Secondly, we can say when price of a commodity falls, quantity demanded of a commodity rises. So this is the main statement or main explanation of this law of demand. So what our question is, it's all about this law of demand fails in case of. There are some exceptions where our law of demand does not hold well. What are these exceptions? First of all, we will say what are these exceptions. First of all, we have this Veblen goods or articles of social distinction. These goods were discovered by Thorstein Veblen, that's why we call them Veblen goods. Why we call them articles of social distinction? Because these are the goods which are their demand is very high when their price is very high. These, like we have gold, we have jewelry, we have carpets. They have high demand only if their price is high. When their price falls, they does not remain the articles of social distinction. Their demand also falls. Here what we see is that when the price of a commodity, when the price of a Veblen good increases, its quantity demanded also increases. So there is a positive relationship between price of a good and its quantity demanded. What our law of demand says, there is a negative relationship between quantity demanded of a commodity and its price. In case of Veblen goods, we have positive relationship between. So in this case, we can say that in case of Veblen goods, our law of demand does not hold well. So second is the case when we have given goods. In case of given goods also, we have positive relationship between price of a good and its quantity demanded. When a price of a commodity increases, its quantity demanded also increases. When a price of a commodity falls, its quantity demand of its falls. But there are some effects that you must keep in mind while we are dealing with given goods. What are these given goods? In case of given goods, price effect is positive. That we have discussed. Price effect is positive. That means quantity demanded and price have got positive relationship. Secondly, in case of given goods, our substitution effect is always negative.
negative. In case of given goods, substitution effect is always negative. In case of inferior goods also, substitution effect is negative. In all the goods, the substitution effect is always negative. You must keep it in mind. Substitution effect is always negative, whether it's inferior good, whether it's this given good. So this is the second effect. First effect is price effect is positive, and second effect is income if this substitution effect is negative. Third one is जो income effect इसमें होता है, income effect इसमें होता है, that's always negative. Income effect is always negative. Income effect is always negative. What does it mean is that when income of a consumer increases, quantity demanded initially increases, but with the increase in more income, quantity demand of a commodity, when initially income of a consumer increases, the quantity demanded increases, but with more increase in the levels of income, the quantity demanded of a commodity decreases. So there is a negative relationship between income of a consumer and its quantity demanded. When income increases further beyond a certain limit, the quantity demanded decreases of that commodity. This is the third effect. And we have second types of goods, that's inferior goods. In case of inferior goods, we do have same effects. Only here price effect is negative. In case of inferior goods, income effect is negative. And third we have substitution effect, that's also negative. Then what's the difference between income effect, this inferior good and a given good? जो given good हमारा होता है, given goods are highly inferior. What does it mean? Highly inferior goods means these are also goods, these are also inferior goods, but they are highly inferior. What does it mean? It means जो आपके given goods होते हैं उनमें negative income effect ज़्यादा होता है, outweigh करता है substitution effect, outweighs substitution effect. This is the main difference. Negative income effects outweigh करता है substitution effect को in case of these inferior given goods. But in case of inferior goods, our substitution effect outweighs negative income effect. So this is the basic difference. In case of inferior goods, substitution effect outweighs the negative income effect, but in case of given goods, what we see is that negative income effect outweighs the substitution effect. Substitution effect always leads to, when there is substitution effect, there always leads to increase in demand. When there is income effect, when there is negative income effect, it always leads to decrease in demand. So when negative income effect outweighs the substitution effect, this means that this is more than this, income effect is greater than substitution effect. This means that, so negative income effect, this means that demand will decrease in price. So there is a positive relationship between the price and quantity demand of a commodity. So in case of given goods, this negative income effect outweighs the substitution effect. So what our question was,
that law of demand fails in case of, I have discussed these things with you people, that law of demand fails in case of given goods. This is the correct answer. Inferior goods, no. Law of demand does not, law of demand never ever fails in case of inferior goods. That I have told you. Why? Because substitution effect in case of inferior goods is more than negative income effect. What substitution effect? That contributes to the negative relationship between this law of demand, that contributes to the negative effect between the price and quantity demand of a commodity. In case of go, this is not the option. In case of articles of social distinction or Veblen goods, we have told that then when their price is high, like gold, silver, jewelry, when their price is high, people demand more. So in case of given goods as well as in case of articles of social distinction or Veblen goods, our law of demand does not hold well. There are other exceptions as well, but here I have taken up the question in this case, so the answer will be A and C. Answer will be A and C. So we have discussed the first question. Our second question is other things remaining constant, being constant, when with the fall in price the quantity demand of a commodity increases, the said process is called. जब बाकी जो फैक्टर्स है जो कि इफेक्ट करते हैं हमारे डिमांड को, जो कि हमारे डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड है, जब एक कमोडिटी का प्राइस जो है वो फॉल हो जाता है, क्वांटिटी डिमांड हमारे पास जो है वो इंक्रीज हो जाता है, इस जो ये प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम चेंज इन डिमांड कहते हैं, इसे हम कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहते हैं, इसे हम एक्सटेंशन डिमांड कहते हैं, या नन ऑफ द अबव. देखिए, वन इज कॉल्ड, इसमें दो चीज़ें हैं. वन इज कॉल्ड चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. दूसरा जो हमारे पास होता है चेंज इन डिमांड. चेंज इन डिमांड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस? Change in demand means when there is increase or decrease in the quantity demand of a commodity with the fall or rise in price. So change in demand is related to price only one factor, that's the main factor. Change in quantity demand is related to price. When price falls, quantity demand of a commodity increases. When price increases, quantity demand of a commodity decreases, कीपिंग आल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट. इस वाले फैक्टर में जो हम बाकी जो फैक्टर्स हैं उनको कांस्टेंट रख के हम देखते हैं कि प्राइस जब फॉल होगा एक कमोडिटी का विद इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, या जो क्वांटिटी डिमांड एक कमोडिटी की इंक्रीज हो जाती है विद फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, तो इस चीज़ को हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. दूसरे अल्फाज में हम इसे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड, इसे हम कहते हैं मूवमेंट along the same demand curve. What does it mean? It means जब one second, it means this is the demand curve, this is price, this is quantity, this is price, this is quantity. When price of a commodity will increase, this means that quantity demand of a commodity will decrease. Q1, this is P1. With increase in the price, quantity demand of a commodity falls. So there is a movement along the same demand curve. A से B तक या B से एक तक हम पहुंच गए. So there is a movement along the same demand curves. The direction is in this sense here. Because with our price was P first, our quantity was Q. With increase in the price of a commodity, our price becomes P1, so quantity demand becomes 1. So the direction is in this. So there is a movement along the same demand curve in case of change in quantity demanded. So this is called when there is increase or decrease in the quantity demand of a commodity with change in the price only. So this is the first. This means ऐसे हम दूसरा नाम जो हम देते हैं इसे हम कहते हैं कि this is called
इसे हम कहते हैं कि मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। दूसरा हमारे पास जो है चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड मीन्स आपकी जो डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी चेंज होगी विद चेंज इन अदर फैक्टर्स, विद चेंज इन अदर फैक्टर्स, जो कि हम लॉ ऑफ डिमांड में कांस्टेंट रखते हैं। चेंज इन अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस, प्राइस के बगैर जो भी फैक्टर्स है उनकी वजह से जो जब आपकी डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएंगी उसे हम कहते हैं चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड, इसे हम दूसरे अल्फाज में कहेंगे कि दिस इज कॉल्ड शिफ्ट इन डिमांड करो, शिफ्ट इन डिमांड करो। इसे आप दूसरा नाम दे सकते हैं शिफ्ट इन डिमांड करो। व्हाट डज इट मीन इज दैट जब आपकी एक फैक्टर इसमें है, अगर हम इनकम लेंगे, जब एक कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी, जो इससे इफेक्ट एक क्वांटिटी डिमांड ऑफ कंज्यूमर पे जो इफेक्ट आएगा उसे हम कह सकते हैं कि इस इज कॉल्ड चेंज इन डिमांड। हम कैसे दिखा सकते हैं? वी कैन शो दिस आल्सो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। देखिए, जैसा वो डिमांड करो, फर्स्ट डिमांड करो, देखिए अब इनकम दिस इज डी डिमांड करो। अब इनकम कंज्यूमर की इंक्रीज हो गई तो क्या होगा, जो हमारी जो है डिमांड करो का स्लोप सेम रहेगा, लेकिन इसका जो स्लोप सेम रहेगा लेकिन दिस विल शिफ्ट। दिस मीन्स दैट एट द सेम प्राइस मोर ऑफ अ कमोडिटी इज परचेज। देखिए किसके ओवर, सेम प्राइस पे हम ज़्यादा खरीदते हैं। क्योंकि ये कैसे हुआ? क्योंकि इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज हुई, प्राइस सेम रहा है, उसकी वजह से जो है जब इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज हुई है तो उस चीज़ से क्या हुआ, इसने ज़्यादा सेम प्राइस पे ज़्यादा खरीदा। सो दिस ओनली इन बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ इनकम। So this is called a change in. There are other factors also like price of related goods is there, taste and preferences there, expectations are there, population size are there, distribution of income is there. These are other factors are well they so in इसीलिए हम इसे कहते हैं कि this is called shift in demand curve, क्योंकि यहाँ पे इनकम इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ, हमारी डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हो गई। So this is called a change in demand. This is called a change in demand. So हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन ये था कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, सो वी आर, जब बाकी जो थिंग्स है सिट्रस पैराबस, इनको हम कहते हैं अदर थिंग्स को, जब ये कांस्टेंट रहेंगे, इस मीन्स दैट वी आर हियर टॉकिंग अबाउट, जब ये कांस्टेंट रहेंगे वी आर टॉकिंग अबाउट देन हियर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्योंकि हम डिमांड जो चेंज इन डिमांड अभी मैंने बोला ना अदर फैक्टर्स, सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की। जब with the fall in price of a commodity, quantity demand of a commodity increase, the said price is called extension in demand. One second. This is called एक्सटेंशन इन डिमांड, ना कि कंट्रैक्शन, क्योंकि प्राइस फॉल होने की वजह से जो क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी है वो इंक्रीज हुई है। अगर इंक्रीज प्राइस होने की वजह से फॉल हो जाती हमारी डिमांड, तो हम उसे कह सकते थे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। यहाँ पे प्राइस फॉल हुआ है, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हुई है, तो इसे हम कह सकते हैं दिस कॉल्ड एक्सटेंशन इन डिमांड। अगर विद द फॉल इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, बाकी चीज फैक्टर्स को कांस्टेंट रख के, जब प्राइस के फॉल हो जाने से क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज हो जाएगी, द सेड प्राइस इज कॉल्ड एक्सटेंशन इन डिमांड। अगर बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट रख के, अगर हमारे विद द राइज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी अगर क्वांटिटी डिमांड फॉल हो जाती है, तो उसे हम कह सकते हैं दिस द अपोजिट, दैट इज कॉल्ड कंट्रैक्शन, क्योंकि हमारी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हुई है, यहाँ पे एक्सटेंड हुई है हमारी डिमांड। सो इसमें जो आंसर आ जाएगा दैट सी, दैट्स योर सी। सो यहाँ पे आपका जो है आंसर आ जाएगा दैट्स योर सी। सो बढ़ते हैं आगे देखेंगे हम कौन सा क्वेश्चन होगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स। देखिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, यहाँ पे भी मैं दो चीज़ों पे आऊँगा।
elasticity of demand, elasticity of demand and law of demand, law of demand, law of demand. elasticity of demand जो है, जो हमारा law of demand है, वो सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज दिखा रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज ऑफ डिमांड। ये मैग्नीट्यूड नहीं दिखाता है, ये सिर्फ डायरेक्शन ऑफ डिमांड दिखाता है। डायरेक्शन मीन्स या ये इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, बस इसी के बारे में लॉ ऑफ डिमांड कहता है। ये कभी जो है मैग्नीट्यूड के बारे में या एक्सटेंट ऑफ डिमांड कितनी इंक्रीज हुई कितनी डिक्रीज हुई उसके बारे में लॉ ऑफ डिमांड कुछ नहीं कहता है। सिर्फ जब ये कहता है तो ये कहता है या तो आपकी डिमांड इंक्रीज हुई है या तो आपकी डिमांड इंक्रीज हुई है या तो आपकी डिमांड डिक्रीज हुई है। जैसे मैं अभी हमने कहा कि देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड quantity demand of a commodity. So there is a only direction, it only shows direction. When we talk about this elasticity of demand, what we say that there is a that also that shows direction as well as this is the most important question in this elasticity of demand जो है डिमांड दैट आल्सो एक तो वो डायरेक्शन इंक्रीज डिक्रीज भी दिखा रहा है कि आपकी विद द फॉल और राइज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ये एक तो ये डायरेक्शन दिखाता है, सेकेंडली ये मैग्नीट्यूड भी दिखाता है। सो हमारा क्वेश्चन क्या था कि elasticity of demand measures direction of a quantity demand. So this is not only this option that we will say this is valid. Magnitude of a quantity demanded, magnitude, so we can say this is also, but इंडिविजुअली हम इनको नहीं कह सकते, तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा सी पार्ट। ये डायरेक्शन भी दिखाता है, मैग्नीट्यूड भी दिखाता है। सो होप दिस इज क्लियर। When elasticity of demand is unitary elastic, the total revenue according to total revenue method will be, जब elasticity of demand यूनिटरी होगी, वन होगी बराबर, टोटल रेवेन्यू मेथड आपको पता ही है, जो हमारे पास जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के तीन मेथड्स होते हैं। एक होता है पॉइंट मेथड, दूसरा होता है प्रोपोर्शनेट मेथड, इसे हम परसेंटेज मेथड भी कह सकते हैं, तीसरा होता है टोटल रेवेन्यू मेथड, टोटल आउटले भी हम कह सकते हैं इसे। सो वी आर हियर टॉकिंग अबाउट दिस, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट दैट व्हेन आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब बराबर होगी 1 के बराबर, उस टाइम अगर आप देखोगे हमारा टोटल रेवेन्यू क्या होगा। हमारे पास इकोनॉमिक्स में जो है एक रिलेशनशिप है, ऑन द बेस ऑफ दैट हम कह सकते हैं कि क्या होगा। देखिए हमारे पास एक रिलेशनशिप है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू 1 - 1 डिवाइड बाई ई। दिस इज द रिलेशनशिप। ये आपको याद रखनी है ये रिलेशनशिप, क्योंकि इसी के बिना पे हम बोल सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू क्या होगा। जब आपकी हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सो जो ये रिलेशनशिप है, हियर वी कॉल इस मार्जिनल रेवेन्यू, दिस प्राइस 1 - 1 दिस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ई इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज व्हाट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1, बिकॉज हमने वही क्वेश्चन में तो हम वही कहते हैं ना, जब आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 के बराबर है टोटल रेवेन्यू क्या होगा। सो टोटल रेवेन्यू क्या होगा, देखिए दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस 1 - 1 डिवाइड बाई ई। सो देते हैं मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इंटू 1 - 1 डिवाइड बाई 1। दिस मीन्स 1 - 1 is equal to 0, 0, anything divided by 0 divided by anything is equal to 0. So this will be equal to marginal revenue is equal to price into 0. This means that marginal revenue will be equal to 0. This means that total revenue has not changed, total revenue has remained constant. When marginal revenue is 0, this means टोटल रेवेन्यू हैज रिमेन कांस्टेंट। सो हमारे टोटल रेवेन्यू में कुछ चेंज नहीं आई है, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू हम क्या कहते हैं, अगर हम
एडिशनल यूनिट को एम्प्लॉय करेंगे हमारे रेवेन्यू में कितना चेंज आएगा, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू में कुछ चेंज नहीं आएगा तो ये जो टोटल रेवेन्यू है वो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। तो वही हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक दैट रेवेन्यू total revenue according to total revenue method will increase, this is not the option, will remain constant, this is that will decrease, no, both A and B, no, so it will remain constant. This is the answer to this question. Hope you have got this answer. उसके बाद हम आएंगे एक और पे क्वेश्चन पे, इन केस ऑफ inferior goods we have discussed these goods some minutes before. In case of inferior goods, substitution in income effects are both are positive, first option, both are negative, second option, third option income effect is positive and substitution effect is negative, third option income effect is negative and substitution effect is positive. So what is this all about? Both are negative, both are positive, income effect is positive and substitution effect is negative. क्या होगा इसका आंसर, वो अभी मैंने डिस्कस किया, मैं दोबारा से डिस्कस करूंगा। जो हमारे पास जो इन्फीरियर गुड्स होते हैं, इन्फीरियर गुड्स का जो प्राइस इफेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है, और जो इनकम इफेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है, और जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है वो भी नेगेटिव होता है। ये आप याद रखिए, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज नेगेटिव, इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव और प्राइस इफेक्ट भी नेगेटिव होता है इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स। इनकम इफेक्ट का नेगेटिव होने का मतलब ये है कि जब आपकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी, पहले तो आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है आप पहले इंक्रीज करोगे, विद फर्दर इंक्रीज इन द इनकम लेवल्स ऑफ इनकम, आपकी जो है उस कमोडिटी की जो है आप उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है उसकी डिमांड जो है कम करो। सो व्हाट आवर क्वेश्चन वाज इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स सब्स्टिट्यूशन इनकम इफेक्ट्स आर, सो बोथ आर पॉजिटिव, दिस इज गलत, ये जहाँ हमारे पास ये गलत है, बोथ आर नेगेटिव, ठीक, इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज, ये भी गलत है, ये भी गलत है, इनकम इफेक्ट नेगेटिव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव, सो हमारे पास जो है बोथ आर नेगेटिव, ये इसका जो है जवाब रहेगा। उसके बाद हम आएंगे एक और क्वेश्चन पे, शॉर्ट टर्म डिमांड करो शोज रिलेशनशिप। हमारे पास दो तरह की डिमांड फंक्शंस होती है, वन इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म डिमांड फंक्शन, दूसरे को हम कहते हैं लॉन्ग रन या डायनेमिक डिमांड फंक्शन। शॉर्ट टर्म में जो है आपका जो क्वांटिटी आपकी जो है वो फंक्शन होती है प्राइस का। व्हाट डज इट मीन, जो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी है वो फंक्शन होता है बस प्राइस, बाकी जो है फैक्टर्स को कांस्टेंट रख के जब आपका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, क्वांटिटी डिमांड आपकी डिक्रीज हो जाएगी, या प्राइस आपका फॉल हो जाएगा, क्वांटिटी डिमांड आपकी इंक्रीज हो जाएगी, तो जब आपकी क्वांटिटी डिमांड फंक्शन होगी प्राइस के, इसे हम बोलते हैं दिस कॉल्ड शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, दिस कॉल्ड शॉर्ट रन प्राइस दिस डिमांड फंक्शन। सेकंड इज कॉल्ड डायनेमिक डिमांड function. In case of dynamic demand या long run demand function, long run or dynamic demand function, our quantity demand of a commodity is a function of not only price also price of related goods, income of the consumer, this I is income of the consumer, expectation regarding the future price, or there is called wealth of a snob effect, demonstration effect. These are the factors, various factors are there which are responsible for demand for a commodity in the long run. So when our demand is the function of these all factors, so we can say this is called a long run or the dynamic demand function. So what our question was,
शॉर्ट रन डिमांड फंक्शन शोज रिलेशनशिप बिटवीन, मैंने आपको अभी बोला शॉर्ट रन डिमांड फंक्शन किस किस के बारे में जो है वो या तो प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड में वो क्या इसी में दिखाता है रिलेशनशिप। क्वांटिटी डिमांड एंड इनकम ये नहीं आएगा, क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस ये इसका जो हम कहेंगे कि ये इसका ठीक है। क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स ये नहीं आएगा, ऑल ऑफ द वो ये भी नहीं आएगा। सो इसका आंसर जो है वो बी पार्ट बन जाएगा। होप दिस इज आल्सो क्लियर। उसके बाद इंक्रीज इन डिमांड इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था इंक्रीज इन डिमांड, जब हमने कहा था चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड, हम यहाँ पे चेंज इन डिमांड की बात करेंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन इसी के रिलेटेड है। चेंज इन डिमांड मीन्स जब आपका क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होगा विद चेंज इन अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में मैंने कहा आपको इनकम आ जाती है, उसमें प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स आ जाते हैं, उसमें वेल्थ आ जाती है, उसमें डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट आता है, स्नॉब इफेक्ट आता है, उसमें एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस आता है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो जाते हैं, उसमें फैशन कस्टम्स आ जाते हैं। देयर आर वेरियस फैक्टर्स जो कि चेंज इन डिमांड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि प्राइस के अलावा जो भी फैक्टर की वजह से जब हमारी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी उसे हम कह सकते हैं दैट्स कॉल्ड चेंज इन डिमांड। तो यहाँ पे जो है जब 1 मिनट जब आपकी डिमांड क्वांटिटी डिमांड जो है इंक्रीज हो जाएगी विद चेंज इन एनी फैक्टर, जो भी चाहे इनकम हो, इसे हम कहेंगे दिस कॉल्ड, इसे हम इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं कि हमारी जो है डिमांड जो है वो इंक्रीज हुई, दिस कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड, दिस कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या है, जब आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी विद इंक्रीज इन एनी ऑफ द फैक्टर, चाहे इनकम हो, चाहे वेल्थ हो, चाहे एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस हो, चाहे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इंक्रीज हो, चाहे प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स इंक्रीज हो, तो इनकी वजह से जब आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी इसे हम कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। और दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट है डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या है, यहाँ पे डिक्रीज इन डिमांड का मतलब है यहाँ पे जब आपकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी विद फॉल इन द इनकम, जब आपकी इनकम फॉल हो जाएगी आपकी क्वांटिटी डिमांड भी फॉल हो जाएगी। जब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जो है, जब प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स जो है वो फॉल हो जाएगी, जब प्राइस ऑफ जिसे हम कहते हैं जब इनकम ऑफ द वेल्थ ऑफ ए कंज्यूमर जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, उसी वजह से जो क्वांटिटी डिमांड वो डिक्रीज हो जाएगी। सो जब ये चीज़ें डिक्रीज हो जाएंगी उसकी वजह से जो है क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी डिक्रीज हो जाएगी, इसे हम कह सकते हैं कि दिस कॉन्सेप्ट वी कॉल एज दिस इज कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड। सो दी जो डिक्रीज और इंक्रीज या डिक्रीज है ये अदर फैक्टर्स के रिलेटेड है, अदर फैक्टर्स जो कि इफेक्ट करते हैं डिमांड को उसके रिलेटेड है। हाँ, इसे हम दूसरे अल्फाज में कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड करो। सो वी हैव डिस्कस दिस। हमारा क्वेश्चन क्या था, हम अब क्वेश्चन पे आएंगे। इंक्रीज इन डिमांड इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स ये भी आएगा क्योंकि जब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर ये भी आएगा, प्रेफरेंस टुवर्ड्स पर्टिकुलर कमोडिटी ये भी आएगा, ऑल ऑफ द अबव। सो इसका आंसर जो है ऑल ऑफ द अबव आएगा। होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। उसके बाद सम ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इक्विवेलेंट, जब हम हर किसी गुड की क्रॉस इलास्टिसिटी निकालेंगे और फिर सम करेंगे वो ऑलवेज इक्वल होता है आपकी यूनिटी 1 के बराबर। इसके लिए मैथमेटिकल प्रूफ भी है, मुझे उसकी तरफ नहीं जाना है, बस आपको ये सम ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ऑल गुड्स एंड सर्विसेज ये हमेशा इक्वल होता है 1 के बराबर। सो
this does not require much explanation, क्योंकि demand करो in case of substitute goods is, demand करो in case of substitute goods is what it is. So we will first of all substitute good, what is substitute good, what is complement good, we will discuss this first. Let me come here. Substitute goods are those goods which can be substituted to each other. This means substitute goods that satisfy same wants, same needs. Substitute goods हम उनको कहेंगे जो कि सेम मतलब चाहे आप वो यूज करो या ये यूज करो, दोनों जो है सेटिस्फाई सेम नीड्स करेंगे, सेम नीड्स. देखो इसमें मतलब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं सबस्टिट्यूट गुड्स के जो हम सबस्टिट्यूट कर सकते हैं. 1 सेकेंड. लाइक हमारे पास टी एंड कॉफ़ी है, हमारे पास टी एंड कॉफ़ी है. हम ये एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे टी एंड कॉफ़ी, दीज आर सबस्टिट्यूट गुड्स. देखो जब डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एंड प्राइस ऑफ इट्स सबस्टिट्यूट. एक सेकेंड. डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एंड इट्स सबस्टिट्यूट is positively related. इसका मतलब क्या है, डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एंड इट्स सबस्टिट्यूट इज पॉजिटिवली रिलेटेड. इसका मतलब क्या है, हमारे पास अगर हम लेंगे इसी एग्जांपल को, 1 सेकेंड. वन इज कॉफी, अनदर इज टी. जब टी हम बोलेंगे क्योंकि ये इसका सबस्टिट्यूट है, टी सबस्टिट्यूट फॉर कॉफी एंड कॉफी सबस्टिट्यूट फॉर टी. जब यहाँ पे टी का जो है हम बोलेंगे प्राइस इंक्रीज हुआ, जब इसका प्राइस जो है इंक्रीज हुआ, लोग जो है वो दे विल प्रेफर कॉफी. सो व्हेन देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, जब एंड प्राइस ऑफ इट सबस्टिट्यूट, यहाँ पे प्राइस ऑफ सबस्टिट्यूट जो है वो क्या हुआ है, वो इंक्रीज हुआ है. डिमांड फॉर द कॉफी क्या हुई है, इंक्रीज. दैट्स वाई मैंने कहा डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, दिस इज डिमांड फॉर अ कॉफी, डिमांड फॉर कॉफी, demand for product means demand for coffee, and price of its substitute, this here substitute is t. Price of its substitute is positive in nature. This means that जब price of substitute, ये coffee इसका substitute है, जब या टी इसका सबस्टिट्यूट है, जब टी का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब जो है जो सबस्टिट्यूट का जो है डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी. डिमांड फॉर ए कॉफ़ी एंड प्राइस ऑफ इट्स सबस्टिट्यूट, प्राइस ऑफ हम बोलेंगे यहाँ पे टी इज पॉजिटिवली रिलेटेड. दिस मीन्स दैट जब टी का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, कॉफ़ी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. जब टी का प्राइस जो है फॉल हो जाएगा, कॉफी की डिमांड फॉल हो जाएगी. सो इन केस ऑफ सबस्टिट्यूट गुड्स वी हैव डिमांड करो दैट्स पॉजिटिवली रिलेटेड. हाँ, सो वी हैव लाइक दिस इज दैट डिमांड करो इन केस ऑफ सबस्टिट्यूट गुड्स. ये मैंने अभी आपको समझाया ये कैसे है. सेकंड यहाँ पे है कंप्लीमेंट गुड्स. कंप्लीमेंट गुड्स आर जो हम that are always used together, जो हम अलग अलग यूज नहीं कर सकते, लाइक कार एंड पेट्रोल. देखो अगर एक का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो दूसरे की डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाती है. अगर जो है प्राइस ऑफ पेट्रोल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, लोग गाड़ियां नहीं चलाएंगे, मतलब वो गाड़ियां घर पे रखेंगे. क्यों? क्योंकि जब प्राइस पेट्रोल का क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, डिमांड फॉर द कार्स विल डिक्रीज. सो इसी तरह अगर प्राइस ऑफ पेट्रोल फॉल हो जाता है, डिमांड फॉर द कार्स विल इंक्रीज. सो दिस मीन्स दैट हियर देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एंड प्राइस ऑफ इट इज प्राइस ऑफ अ कंप्लीमेंट. सो वी कैन से हियर 1 minute, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप. सो डिमांड करो इन केस ऑफ complementous, in case of complementous is
that's negatively related downward sloping. There's downward sloping, and there is a negative relationship between demand for a product and price of the complement. So what our question was, so demand curve in case of substitutes is negatively sloped. No, this is in case of complements. Positively yes, parallel to x-axis no, parallel to y-axis no. So this was the question number 9. Last question. If the demand curve is linear in nature, the elasticity at each point will. 1 second. What was the question? If the demand curve is linear in nature, when our demand curve is linear means it's a straight line. This like this, x1 plus bx plus c. This is a straight line. Huh? सो जब हमारी जो है डिमांड करो लीनियर है, तो लीनियर का मतलब है इसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट होगा हर किसी पॉइंट पे. 1 सेकेंड. लीनियर डिमांड करो, इसका जो है स्लोप कांस्टेंट होगा हर किसी पॉइंट पे. ठीक है, लीनियर डिमांड करो. यहाँ पे हम बोलते हैं कि जो भी यहाँ पे पॉइंट्स है इन पे जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो वेरी करेगा हर किसी पॉइंट पे, चाहे आप यहाँ पे लो, 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 चाहे आप यहाँ पे. जब आपकी डिमांड करो लीनियर होगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हर किसी पॉइंट पे वेरी करेगा, ये सेम नहीं रहेगा. लेकिन इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आपने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में सुना होगा. इनके सब जब हमारी जो है नॉन लीनियर डिमांड करो होगी, लेकिन उसमें स्पेशल केस देयर इज अ नॉन लीनियर डिमांड करो, हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगी. अगर हमारे पास डिमांड करो ऐसी है कि दैट टेक्स द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उस वक्त हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इलास्टिसिटी जो है यहाँ पे हर किसी पॉइंट पे जो है वो कांस्टेंट रहती है. पॉइंट कांस्टेंट. इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड करो, जब हमारी ऐसी डिमांड करो होगी उस पे जो है हमारी जो है जो ये इलास्टिसिटी है वो हर किसी पे, लाइक हमारे पास कॉब डोगलास दिस कॉब डोगलास डिमांड फंक्शन होगी, उसमें जो है इलास्टिसिटी हर किसी पॉइंट पे जो है वो क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी. दैट्स कॉल्ड कांस्टेंट इलास्टिसिटी डिमांड फंक्शन. हमें उसकी तरफ नहीं जाना है कांस्टेंट इलास्टिसिटी डिमांड फंक्शन क्या होती है, लेकिन मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि जब आपकी डिमांड करो लीनियर होगी हर किसी, ये हमें पता है कि जब हम पॉइंट मेथड पढ़ते हैं, पॉइंट मेथड या ज्योमेट्रिक मेथड हम पढ़ते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, वहाँ पे जब हम यहाँ पे लेते हैं मीडियम पे, जहाँ पे हम बोलते हैं इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, यहाँ पे इसके नीचे इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, यहाँ पे जो है इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0. इलास्टिसिटी यहाँ पे जो हम इलास्टिसिटी अब ये इस मिडल पॉइंट से ऊपर इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पे हम इस पॉइंट पे जो हम वाई एक्सिस पे देखते हैं इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी. सो आपने देखा जब आपकी डिमांड करो लीनियर होती है, इलास्टिसिटी हर किसी पॉइंट पे जो है वो वेरी कर जाती है. सो हमें यहाँ पे यही क्वेश्चन है, द डिमांड करो इज लीनियर इन नेचर, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट ईच पॉइंट will remain constant. So no, this is only in case of constant elasticity demand function. Vary at each point, this is the answer. Decrease no, increase no. So this was all about today's lecture. Hope you have got all the concepts that I have discussed in this meantime. So thank you all.